hi everyone. Coming back to the class, we're discussing under the TP Act under section 108, in which we are discussing about the rights and the liabilities of the lessor and the lessee. Okay, so as we have already discussed, who is a lessor, who is a lessee? Okay, the person who gives the lease of the property is called the lessor, and the person who takes the lease of the property is called the lessee. That is what we have already discussed in the last class. Okay, so about the concept of the lessor and the lessee, we have also discussed the lease is the transfer of the possession, not the transfer of the ownership. Okay, if I am having a land and I am giving you the land as lease, that means I am transferring the uh, possession of the land to you. That means I had the possession on the land. I was the owner of the land. But even after transferring the property to you, even after transferring the possession of the property to you, still I have the ownership of the land. You are not the owner of the land. You just got the possession of the land. That's it. You just got the possession. You are not getting the ownership. Got it? So when we're talking about the rights and liabilities of the lessor and the lessee, then under that concept we have already discussed the concept of the lease is exactly about the transfer of the possession, not the transfer of the ownership. The person who is the previous owner continues to be the current owner and continues to be the future owner only. And the person who is taking the property as the lease, he is taking the possession for a specific time period. That means अगर हिंदी में समझे तो सामान आपका रहेगा, बट उसी को एंजॉय करने का, उसी से फायदा लेने का जो बेनिफिट्स है, उसी से किसी भी तरह का बेनिफिट्स उठाने का जो हक है वो मुझे मिलेगा फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए. Not for the unlimited period or not for the lifetime you can take the lease. There is a specific duration कि 2 साल के लिए हो गया, 3 साल के लिए हो गया, 10 साल के लिए हो गया, 50 साल के लिए हो गया. उतना टाइम ड्यूरेशन के लिए यू हैव द राइट टू टेक द पोजेशन ऑफ द लैंड. उतना साल के लिए आप लैंड का जो है पोजेशन ले सकते हो. यू हैव राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीज. ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्लास. सो वी हैव डिस्कस्ड द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेशर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, when there is a person who is the lessor. Lessor means the property, the person who gives the lease of the property, he is called a lessor. Okay, so as we have understood, the person who is a lessor has the basic responsibility to disclose the material fact. That means the person has the uh, liability to disclose that what are the things he need to do. Okay, okay, the person who is the lessor, he has the right to disclose the material facts. That means what are the defects in the property. Okay, the lessor must disclose defects not discoverable with the ordinary fact. Okay, for example, there is a house, you are giving it for the rent purpose or for the lease purpose. Okay, so when as a lessee, I'm coming to visit the house, I'm visiting the house, I'm checking at every corner of the house, and I'm liking the visuality of the house. Yes, this house is actually looking really nice. This is good looking. This is very crazy. I want to take this house as the lease. But there is a problem with the house. क्या दिक्कत है? That the house is actually very very old. Okay, इसका जो खिड़की है, दरवाजा है, वहां से पानी निकलता है. एंड देर आर वेरी सो मेनी क्रैक्स ऑन द वॉल्स एंड सो मेनी डिफेक्ट्स इन द हाउस, जो कि
बाहर से इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज देयर इज द पेंटिंग ऑन द रूफ। सारे घर पे पेंटिंग करवा के घर को बेचा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे जो भी कोई घर देखने आता है उसको समझ में नहीं आता है कि घर पे दिक्कत क्या है। इट इज unable to be predicted that what is the exact issue of the house। घर के साथ दिक्कत क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि घर का जो बाहर से घर का एम्बियंस जो है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। सो यहाँ से जो लेसर है, ओके, जब वो घर को लीज दे रहा है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लेसर टू डिस्क्लोज कि देखो ये घर बहुत पुराना है, यहाँ से पानी गिर सकता है, ये चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि अगर लेसी आगे जाके वहां पे रखता है रहता है तो आज नहीं तो कल तो बारिश होगी ना। आज नहीं अगर कल बारिश होती है तो बारिश के वजह से जब पानी गिरने लगेगा, जब कोई दिक्कत आने लगेगा, तभी तो ये चीज पता चलेगा ना कि हाँ दिस इज द प्रॉब्लम हैपनिंग और दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज बीन अरेज करके। सो यही एक चीज है ना जिस चीज को क्लैरिटी लाना चाहिए। मटेरियल डिफेक्ट अगर कोई है, अगर कोई दिक्कत है तो उसी चीज को बता देना चाहिए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लेसर टू क्लैरिफाई दैट व्हाट आर द फॉल्स associated with the property। Got it? Then comes your number 2, duty to provide possession। possession का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया था, लीज इज ए ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी where the possession is transferred, not the ownership। लीज में आपका ओनरशिप नहीं है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। यहाँ पे लीज पे क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी आपका है, प्रॉपर्टी आपका ही रहेगा, बट प्रॉपर्टी का जो एंजॉय है, एंजॉयमेंट का राइट है, घर आपका है, घर आपका ही रहेगा, बट घर को एंजॉय करने का पूरा हक मेरे पास रहेगा। आई हैव द राइट टू एंजॉय द होम, आई हैव द राइट टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम द होम। गॉट इट? सो द it is the duty or the right of the मतलब लेसर टू प्रोवाइड द पोजेशन ऑफ द फुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी। बिकॉज यहाँ पे अगर लेसी पूरा पैसा पेमेंट कर रहा है देन ही और सी हैज द बेसिक राइट्स टू एंजॉय द प्रॉपर्टी इन ए फुल्ली मैनर। बिकॉज घर उसका है, जब से वो ले रहा है उसका ओनरशिप ओनरशिप उसी के पास ट्रांसफर हो जाता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। भले ही ओरिजिनल ओनर कोई और रहता है, बट उसी का जो टेम्पररी ओनरशिप है, टेम्पररी एंजॉयमेंट का राइट है, वो तो लेसी के हाथ पे ही रहता है ना। तो पोजेशन ट्रांसफर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीज। एंड द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द गारंटी ऑफ पीसफुल पोजेशन। वहां पे क्या बोला जाता है, द लेसी कैन होल्ड द प्रॉपर्टी अनइंटरप्टेड प्रोवाइडेड ओब्लिगेशंस आर मेट। वहां पे क्या बोला गया, दैट द लेसी कैन होल्ड द प्रॉपर्टी अनइंटरप्टेड प्रोवाइडेड ओब्लिगेशंस आर मेट। अगर लेसी जो है वो अपना सारा हिसाब चुका चुका है, ही हैज टेकन द ड्यू केयर, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क इन ए प्रॉपर मैनर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी इन ए बेसिक वे। लीज का जितना सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो सारा कुछ फॉलो कर रहा है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी इन ए वेरी गुड वे। So in that specific circumstances, the lessee has the right to hold the property uninterrupted। वो जो प्रॉपर्टी है ना, सारा प्रॉपर्टी को वो as uninterrupted ही एंजॉय करेगा। And the lessor should not create any kind of the disturbances, and he should take care that any other person should not create any kind of the disturbances in the enjoyment of the property। मान लो घर का पहले से किसी भी तरह का दिक्कत या फिर कोई केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, बट जो लेसी है, जिसने घर लिया है, क्या वो उसका गलती है? उसका गलती तो नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना पूरा पैसा देके घर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि पहले से अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता था घर पे, जैसे कि कोई आके घर पे गाली देता था, कोई आके बोलता था कि नहीं ये मेरा घर है, मालिक अपना जो भी इश्यूज क्रिएट करना एंड ऑल, अगर वो चीज पहले से भी होता था देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द लेसर टू मेक श्योर कि आगे वो चीज रिपीट ना हो आफ्टर द कंडीशन ऑफ द लीज।
क्योंकि लीज के बाद प्रॉपर्टी और किसका हो जाता है, एंड द लेसर गेट्स द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, एंड वहां पे द लेसर हैज द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी पीसफुली। किसी का हक नहीं होता है उसी का और राइट को इंटरप्ट करने का या उसी का खुशी में किसी भी तरह का पानी मिलाने का, बिकॉज उसने अपना पूरा पैसा दिया है, पूरा एंजॉयमेंट भी उसको करने को मिलेगा। समझ गए? उसके बाद अब आता है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसी। लेसी जो है उसका क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटी रहता है। लेसी मतलब कौन हो गया, जो प्रॉपर्टी लेता है। जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है वो हो गया आपका लेसर। जो प्रॉपर्टी लीज पे लेता है वो हो गया लेसी। तो पहला जो है कंडीशन है वो क्या है, क्लॉज डी में मेंशन किया गया है, एनी नेचुरल एडिशंस आर पार्ट ऑफ द लीज। ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन ए लैंड एज द लीज। आपने एलुवियल लैंड का नाम सुना होगा। एलुवियल लैंड क्या होता है पता है, बता देती हूँ। एलोवेरा लैंड में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि लाइक देर आर सर्टन स्पेसिफिक एरियाज विच आर नियर द रिवर। नदी के किनारे कुछ जमीन होता है, कुछ गांव होते हैं, है ना। तो जब 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 नदी का पानी ना किनारे को टच करता है, कभी कभी वो क्या करता है ना, वो एक एक स्पेसिफिक एरिया को पानी के अंदर मिला देता है। ओके। दूसरे कुछ केसेस पे ऐसा होता है कि दूसरे कुछ केसेस पे ऐसा होता है कि ये जो जमीन का जितना सारा लैंड होता है वहां पे मिट्टी जमा होके वो ज्यादा एक्सटेंड भी हो जाता है। इसको बोलते हैं एलुवियल लैंड, जहाँ पे ना लैंड का कोई स्पेसिफिक प्रोक्सिमिटी नहीं रहता है, ड्यू टू द वाटर कंडीशन और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ द स्टॉर्म, एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन, उसी का जो लैंड का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज चेंजेबल, दिस इज वेरिएबल नेचर। वो कभी कभी कंप्रेस कर जाता है, कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, कभी कभी मिट्टी से उसी का जो मतलब स्क्वायर फुट है वो बढ़ जाता है, कभी वो घट जाता है। इट इज वेरी वेरी एक्सचेंजेबल इन नेचर। सो ये जो एलोवियल लैंड है ना, अगर इसी तरह का जमीन को लीज पे लिया गया है, देन द चेंज इज द पार्ट ऑफ इट। जहाँ पे लेसी जो है उसको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जमीन ऐसा ही है। अगर मैंने 5 एकड़ का जमीन लीज पे लिया था और मेरे को पता है कि ये जमीन नदी का किनारे का है, हो सकता है कि नदी का पानी का स्रोत के वजह से नदी पे बाढ़ आ गया, नदी पे किसी भी तरह का दिक्कत आ गया, उसके वजह से मेरा 1 एकड़ का जो जमीन है वो पानी के अंदर चला गया, वो पानी में मिल गया, नदी का किनारा एक्सटेंड हो गया। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लीज। एंड यहाँ पे मैं जाके लेसर को ब्लेम नहीं कर सकती कि आपके वजह से ये हुआ करके, क्योंकि जब मैंने वो जमीन लीज पे ली थी मेरे को पता था ये नदी का किनारे का जमीन है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। सो हियर द नेचुरल एडिशंस और नेचुरल डिग्रेडेशंस आर द पार्ट ऑफ द लीज एंड द लेसी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेसी को उस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। वहां पे क्या बोला जाता है, लीज इज void इफ द प्रॉपर्टी इज wholly destroyed बाय द irresistible forces। मान लो जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने लीज साइन किया है उस प्रॉपर्टी रहा ही नहीं, दैट प्रॉपर्टी हैज बीन wholly destroyed, फायर हो गया, फ्लॉड हो गया, वो प्रॉपर्टी तो पूरा का पूरा नष्ट ही हो गया। So here in that circumstances, tell me, is the lease is valid or void? The lease is void in nature. Got it? The lease is void in nature. Okay. So lease is void if the property is wholly destroyed by irresistible forces. That means if the property is totally destroyed, प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बचा ही नहीं, देन वहां पे लीज भी भॉइड हो जाता है, एंड हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वहां पे लीज भी आपका क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द लीज ऑफ ए हाउस
for the specific purpose of my business. But unfortunately जिस हाउस का लीज मैंने लिया था वो लीज मैंने लेने से पहले ही, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए डील दैट फ्रॉम द 1st of January आई एम गोइंग टू टेक द लीज ऑफ द हाउस. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ दैट द हाउस हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर. वहां पे आग लग गई और पूरा जो घर है वो नष्ट हो गया. सो टेल मी what will happen here? So here the property is totally destroyed. The property is not existing at all. So here the lease is also void. If the property is fully destroyed, totally destroyed by the irresistible forces. Got it? Then comes the repairs by the lessee. Does it mean the lessee can repair after the lessor's failure to do so and recover expenses? What does it mean? It means the lessee has the right to repair the lessor's failure to do so and recover expenses. For example, I have taken the lease of a house which where I am conducting my course of business. But there is the certain issues happen to the house. The electricity has been cut off, for the house infrastructure has facing any kind of the issues. There is the water is sinking, or there is the any kind of the issues is happening in the house. Okay, so I have instructed my lessor that these are the problem happening in your leased property, so take care of it. आप उसी को सही कीजिए. तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देंगे. बट दे इंटेंशनली डिड द डिले, जो कि वो टाइम पे काम नहीं किए. उसके वजह से हमें क्या हुआ ना, हमें दिक्कत होना शुरू हो गया. वी स्टार्टेड फेसिंग द इश्यूज इन आवर बिजनेस. तो हमको यहाँ पे हमारा क्या प्रायोरिटी है, हमारा बिजनेस है. क्या वो कब घर ठीक करेंगे, को अब उनका प्रॉपर्टी है उसी का रिपेयर कब करवाएंगे, क्या उसके लिए हम बैठे बैठे रहेंगे? नहीं ना. तो हमने क्या किया, उनके ऊपर बिना डिपेंड करके हमने अपना रिपेयरिंग का काम खुद कर लिया. वी डिड इट बाय आवरसेल्व्स. हमने अपना काम कर लिया. काम करने के बाद देर इज द टोटल एक्सपेंस. जहाँ पे अगर हम कंसिडर किए, जब कैलकुलेट किए, तो पूरा एक्सपेंस मान लो कि 30,000 का पूरा एक्सपेंस हुआ. देन हु इज लायबल टू पे दैट होल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस? द आंसर इज द लेसर. The lessor is liable to pay the full expense. यहाँ पे जो लेसर है ना, उसका पूरा राइट बनता है टू डू और टू रिकवर द होल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस that is been utilized in the repairing of the property. रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो रिपेयरिंग का ड्यूटी था वो किसका था? लेसर का था. घर जिसका था उसका ही था ना. बट उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं किया. जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं किया तो ड्यूटी किसको करना पड़ा? लेसी को करना पड़ा. खर्चा किसको करना पड़ा? लेसी को करना पड़ा. तो यहाँ पे उस खर्चा का एक्सपेंस किसको देना पड़ेगा? लेसर को देना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. समझ में आ गया? उसके बाद क्या आता है? पेमेंट्स बाय द लेसी. कैन पे एंड रिकवर सम्स इफ द लेसर फेल्स टू पे. ओके. दूसरा क्या हो गया? मान लो upon the leased property, okay, there is a very huge amount of the loan. 30 मान लो कि 5 लाख का एक बहुत बड़ा अमाउंट का लोन है upon the leased property. So there is the bank notice is coming to the property time to time कि यार घर का लोन क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है. सो जब ये नोटिस किसके पास आता है? लेसी के पास आता है, क्योंकि वो तो उसी घर पे रहता है ना. बट वो लोन चुकाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? लेसर का है, क्योंकि लेसी जो है वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए घर लिया है एंड उसका ड्यूटी है कि चलो मैं यहाँ पे 2 साल के लिए हूँ या 3 साल के लिए हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा. बट घर का जो ओरिजिनल ओनर है उसी का ड्यूटी बनता है ना कि सारा लोन रिकवर करना एंड ऑल. तो यहाँ पे लेसी ने क्या किया? लेसर को बार बार बोला जाके कि देखिए आपका ये जो लोन है 5 लाख का, इसी के लिए बार बार नोटिस आ रहा है, सो यू हैव टू
repay the loan. At the end there is a notice from the bank came कि अगर आप 5 दिन के अंदर ये पेमेंट ना करते हो तो हम क्या करेंगे, आपका प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, आपका घर पे ताला लगा देंगे। तो नुकसान किसका होगा? लेसी का होगा। क्यों? घर उसने लिया है, उसी घर पे बिजनेस कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। अगर वो घर पे ताला लग गया तो उसका बिजनेस डूबेगा कि नहीं डूबेगा? उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। अगर उसको लगता है कि उसको बिजनेस को बचाने के लिए ये पेमेंट करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया ना, जाके गवर्नमेंट को 5 बैंक को 5 लाख का पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द लेसर। बोला कि चलिए आप, लेसर ने वो जो मतलब दो ओनर जो है वो पैसा नहीं दे रहे, उनके तरफ से ये 5 लाख में पेमेंट करता हूँ, एंड आई वांट कि ये घर का जब्त ना हो। सो यहाँ पे the lessee has the right to recover the whole amount of the expenses from the lessor। क्योंकि यहाँ पे पैसा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? लेसर का था। क्या लेसर ने दिया? नहीं दिया। So यहाँ पे when the lessor did not pay the wholesome amount and the lessee is bound to pay due to prevent the selling of the property or due to protect the property, in that specific circumstances we have to understand that this recovery of the property also takes a value from the lesser। यहाँ पे जो लेसर है ना, it is also the duty of the lesser to recover the whole amount of the 5 लाख to the lessee। वो 5 लाख अमाउंट जो उसी ने बैंक को दिया है, वो अमाउंट वो किसी से स्यू करेगा? फ्रॉम द लेसर। गॉट इट? उसके बाद आता है आपका रिमूवल ऑफ द फिक्सचर्स। आप अगर पूछेंगे कि तो ये जो फिक्सचर्स का क्या कंसेप्ट है, लेसी में रिमूव फिक्सचर्स ड्यूरिंग पोजेशन लिविंग प्रॉपर्टी एज रिसिप्ट। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। Okay. So when you are okay, so when you are taking the लीज ऑफ ए होम, जब आप एक घर का लीज लेते हो और एक प्रॉपर्टी का लीज लेते हो, तो sometimes it happens that there are certain fixtures or instruments which is associated in the house। जैसे कि आप मान लो आप एक घर का लीज ले रहे हो 5 साल के लिए, तो लीज के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि घर पे ना बहुत सारा सामान आपका कॉमन रहता है। जैसे कि आपका कैसे बताऊं, आपका कोई सोफा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, आपका किसी भी तरह का मतलब कोई फोटोज वगैरह हो गया। तो दीज आर द थिंग्स ना, दिस इज वेरी वेरी परमानेंट इन नेचर। दिस फिक्सचर्स आर वेरी वेरी फिक्स्ड इन नेचर, जो कि घर के साथ साथ आपको मिलता है। ओके, तो अगर आपको अपने लीज्ड प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरह का फिक्सचर्स मिल रहा है, देन यू हैव द राइट टू एंजॉय द फिक्सचर्स एंड टू रिमूव द फिक्सचर्स ड्यूरिंग द possession, लिविंग द प्रॉपर्टी एज रिसिप्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक घर मिला जहाँ पे मतलब जो है ना, वहाँ पे कुछ फोटोज रखा हुआ है घर में, जो कि पुराने ओनर का है, बट मेरे को वो जो फोटोज है ना, उसी का जो पुराना चीजें, यूज्ड चीजें हैं ओनर का, वो मेरे को तकलीफ दे रहा है, क्योंकि मैंने पूरा घर का जो है ओनरशिप लेके रखा है, मैंने पूरा घर का पोजीशन लिया है, तो पूरा घर का जो एंजॉय करने का हक है वो मेरा बनता है ना। ओनर का जो यूज सामान है वो मेरे घर पे अगर रहता है, दैट इज हैम्परिंग माई स्पेस। वो मैं अगर मेरा 4 सामान वहां पे रखती तो मेरे को फायदा होता ना। ओनर का सामान यहाँ पे रह के मेरे को दिक्कत दे रहा है, दैट इज क्रिएटिंग इशू फॉर मी। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, आई हैव द राइट
to remove the fixtures of the property during possession, it is allowed, बिकॉज मेरा यहाँ पे हक है, मेरा यहाँ पे राइट है टू रिमूव द फिक्सचर्स ड्यूरिंग पोजेशन। पोजेशन के दौरान घर पे जितने सारे फिक्सचर्स है, जितने सारे सामान है, उसी को डिस्प्लेस करना, उसी को रिप्लेस करना, या कोई भी स्पेसिफिक फिक्सचर अगर है घर पे तो उसी को रिमूव करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे, करने का भी राइट मेरे पास रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका क्या मतलब है? Lessee or legal representative has the rights to crops planted before the lease termination। अगर मैंने एक जमीन लिया है आपका, मतलब एज ए लीज, वहां पे क्या किया है ना, मैंने अपना एक मतलब आई डिड माई फार्मिंग। तो फार्मिंग के दौरान मैंने वहां पे चावल उगाया है, दाल उगाया है, मेरा बहुत सारे वहां पे अपना एक मतलब क्या है ना, एक अपना अ, जो है कल्टीवेशन का एक लैंड बना के मैंने उसको रखा था। सो जब लीज टर्मिनेशन का टाइम आ जाता है, क्या मैं अपना, मतलब मान लो कि देयर वाज ए ड्यूरेशन की, मतलब अगले 2 महीने के बाद उसी लैंड पे, मतलब मैंने जो ग्रेन लगाया था उसी को ग्रेन आने वाला है, बट उससे पहले ही मेरा जो लीज का ड्यूरेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, either ड्यू टू सम मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, और ड्यू टू द एंडिंग ऑफ द टाइम पीरियड, व्हाट एवर इज द रीजन, वो टर्मिनेट हो जाता है। सो द टर्मिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द लीज is terminating my right to enjoy my own property? The answer is no। यहाँ पे उस जमीन पे मैंने जितना सारा पेड़ लगाया है, वहां पे उस जमीन पे मैंने जो भी अपना कल्टीवेशन किया है, वो किसके लिए किया है? मेरा बेनिफिट, खुद का बेनिफिट के लिए मैंने किया था। तो प्रॉपर्टी मेरा हुआ ना। वो क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, वो किसका है? मेरा है ना। So here I have the right to enjoyment that crops, and yes, the lease cannot be terminated। अगर लीज टर्मिनेट होता भी है, then no one else has the right to enjoy the land until and unless my crops has been taken। मेरा क्रॉप वहां से अच्छी तरीके से होगा, मैं उसको साथ में लेके जाऊंगी, उसी के बाद मेरा लीज टर्मिनेट होगा। समझ गई? सो when we are talking about the growing crops, then we need to understand that the lessee or the legal representative retain right to crops planted before the lease termination। अगर लीज का टर्मिनेट करने से पहले कोई भी ग्रोइंग क्रॉप प्लांट किया गया है, देन उसी का राइट लेसी के हाथ में ही रहता है। गॉट इट? देन कम्स ट्रांसफर ऑफ द लीज। लेसी कैन ट्रांसफर और सबलेट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर लॉ। अगर मैंने अपना एक बहुत बड़ा सा लैंड एज ए लिया है फॉर द कल्टीवेशन पर्पज, एंड आई एम अनेबल टू डू ऑल माई बिजनेस ओवर देयर, मैं खुद वो चीज काम को नहीं कर पा रही हूँ, तो आई हैव द राइट टू सबलेट द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। मैं उस प्रॉपर्टी को और किसी को सबलेट कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ताकि वो जो तीसरा इंसान है, ही विल कैरी माई बिजनेस इन दैट स्पेसिफिक एरिया। दैट मीन्स I have taken lease from someone and I am subletting the property to someone। मैंने किसी से लिया है एंड मैंने भी उस चीज को फिर से लीज पे किसी को दे रही हूँ। आई एम सबलेटिंग द प्रॉपर्टी। गॉट इट? सो अगर इट इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को सबलेट नहीं किया जा सकता, इफ इट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड विथ इट, देन उसी मामले में सबलेट नहीं हो पाएगा। बट अगर ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड है ही नहीं, आप चाहते हुए तो प्रॉपर्टी को सबलेट कर सकते हैं, देन यस, द लेसी हैज द राइट टू सबलेट द प्रॉपर्टी। लेसी का यहाँ पे राइट बनता है प्रॉपर्टी को सबलेट करने का। गॉट इट? देन कम्स disclosure of the value enhancing facts। Okay, so here
13. Yeah. So here, when we are talking about the disclosure of the value enhancing fact, it is explained under the clause K. And what does it mean? It must disclose the information material increasing the property's value. That means if there is any kind of the information which is enhancing the value of the property, which is increasing the value of the property, those information must need to be disclosed. उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, बताना, खोल के बताना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द रेंट. क्लॉज एल. रेंट मस्ट बी paid timely at the agreed location. During the lessor and the lessee, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पैसा जो है इसी जगह पे देना होगा, इसी डेट पे देना होगा हर महीना, so that contract, that agreement must need to be followed. The payment must need to be done time to time. हर वक्त समय से पहले पेमेंट हो जाना बहुत जरूरी होता है. ओके. Then comes maintain property condition. Lessee is bound to return the property in its original condition bearing normal wear. What does it mean? यहाँ पे ये बोला जाता है that the lessee is bound to return the property in its original condition. प्रॉपर्टी को जिस तरीके से, जिस हिसाब से लेसी ले रहा है, उसी तरीके से ही लेसी इज बाउंड टू रिटर्न द प्रॉपर्टी. लेसी जो है प्रॉपर्टी को उसी तरीके से ही रिटर्न करना बनता है. ओके. नेक्स्ट हो गया नोटिफाई लेसर और लीगल प्रोसीडिंग्स. व्हाट डज इट मीन? It must inform the lessor about the encroachments and recovery actions in the property. What does it mean? Clause N. It must inform the lessor about the encroachments and recovery actions on the property. That means if there is any kind of the encroachment or any kind of the change in the property. Yeah, encroachment means any kind of the intrusions in the property. For example, I have taken the lease of the property and I am enjoying my property rights in a very peaceful manner. But there is the intrusion in my property. There is an outsider who is interrupting in my property. So, if there is any kind of the intrusion in the property, anybody else is trying to टेक एनी रिकवरी एक्शन ऑन द प्रॉपर्टी. मैं इस प्रॉपर्टी का अभी लीज लिया हूँ, दूसरा कोई आके बोलता है कि अरे ये प्रॉपर्टी तो मेरा है, इस प्रॉपर्टी का तुम मेरे को दे दो करके. दैट पर्सन इज क्रिएटिंग एनक्रोचमेंट और द एनी काइंड ऑफ द इश्यूज ऑन द प्रॉपर्टी. And I decided, as I am the temporary owner of the property, as I have taken the lease of the property, then I will file a case against that specific person that he is hampering my mental peace. मैं यहाँ पे खुशी पे हूँ, मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, वो तीसरा इंसान आके मेरे को बोलता है कि वो प्रॉपर्टी उसका है जबकि उसका प्रॉपर्टी है नहीं, एंड दैट पर्सन इज हार्मिंग माई मेंटल पीस, सो आई एम फाइलिंग ए केस अगेंस्ट दैट पर्सन. गॉट इट? अगर मैंने ये डिसाइड किया दैट आई विल टेक सम रिकवरी एक्शन फॉर द सेफगार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आई विल टेक सम रिकवरी एक्शन, मैं ऐसा कुछ रिकवरी एक्शन करने वाली हूँ, मेरे को पता है, आई एम गोइंग टू डू इट. ओके. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इफ आई नो that there is the any kind of the encroachment which is unnecessary in nature, any kind of the interrupt is happening which is not good in nature, एंड उसी एनक्रोचमेंट को बंद करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एन रिकवरी एक्शन, देन ये चीज लेसर को बताना जरूरी है. एज ए लेसी इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म द लेसर कि ये चीज है, दिस आर द थिंग्स हैपनिंग एंड आई एम गोइंग टू टेक एन इलीगल एक्शन अगेंस्ट द लेसर, against the against the third party who is creating this encroachment. And this thing must need to be informed to the lessor because he is the owner of the property. उसको ये पता होना चाहिए कि उसी के प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा इंटरप्शन कर रहा है जिसकी के वजह से मेरा जो टेनेंट है या मेरा जो मतलब लेसी है
वो कंप्लेन कर रहा है या फिर केस फाइल कर रहा है कि वो इलीगल एक्शन ले रहा है करके। क्लियर? देन कम्स use of the property. Lessee cannot misuse of the property and commit the destructive acts. मैंने क्लॉज एम पे आपको पढ़ाया था कि द प्रॉपर्टी कंडीशन मस्ट नीड टू बी मेंटेन। दैट मीन्स जिस हालात पे प्रॉपर्टी को लिया गया था उसी हालात पे ही प्रॉपर्टी वापस कर देना चाहिए। अगर ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप अगर ये प्रॉपर्टी ले रहे हो आप उसी को कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। You have to give it back as the way you have taken it. जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी को लिए थे उसी तरीके से प्रॉपर्टी को वापस कर देना जरूरी है। जिस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी लिया था उसी तरीके से मैं प्रॉपर्टी को वापस करूंगी। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी टू डू सो। गॉट इट? टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ द property, to maintain the formality of the property, and I have no right according to clause O. I cannot misuse the property as a lessee or I cannot commit any destructive act. Misuse मतलब for example I have taken the property for the बिजनेस पर्पस बट वहां पे मैं कोई दूसरा अलग धंधा कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, मैं प्रॉपर्टी का तोड़ फोड़ कर रही हूँ, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। क्या मैं वो कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। आई हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे जैसे मैंने प्रॉपर्टी लाया था उसी तरीके से मेरे को वापस करना पड़ेगा। एंड आई हैव नो राइट टू मिसयूज द प्रॉपर्टी और टू डू एनी डिस्ट्रक्टिव एक्ट ओवर देयर। समझ में आ गया? देन आपका आता है क्लॉज पी। क्या बोला? इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये क्या बोलता है? परमानेंट स्ट्रक्चर रिक्वायर लेसर्स कंसेंट एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल पर्पजेस। एग्रीकल्चर पे आपका क्या होता है? एग्रीकल्चर पे आप अगर कोई भी जमीन को एग्रीकल्चर का पर्पस के लिए ले रहे हो तो वहां पे ना आप अपना कल्टीवेशन करते हो। आप अपना जो मतलब कल्टीवेशन के दौरान यू डू योर बिजनेस एंड आप अपना जो भी पानी देना, चीजें को मतलब फसल उगाना, यू डू ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पे आप जिस तरीके से जिस अंदाजा से जमीन को लिए थे उसी अंदाजा से क्या वापस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन एन एग्रीकल्चरल लैंड। क्योंकि एग्रीकल्चर के दौरान काफी चेंजेस होता है यार। तो आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि एग्रीकल्चर के लैंड को जिस तरीके से आपने लिया था उसी तरीके से वापस करो, वो तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर लैंड का, अगर उसी में कोई चेंजेस आता है तो वो चलता है, दैट इज नॉट हार्मफुल इन नेचर। बट यस, अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी है, किसी का घर हो गया, कोई दूसरा चीज हो गया जिसी को एज ए लीज लिया गया है, उसी का परमानेंट स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। द परमानेंट स्ट्रक्चर शुड बी एज इट इज। गॉट इट? द परमानेंट स्ट्रक्चर रिक्वायर्स लेसर्स कंसेंट। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर पे कोई चेंज करना हो तो उसी के लिए ना लेसर का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं लेसी हूँ, मैं अपना फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन ए होम, एक ए हाउस एज ए रेंट और एज ए हाउस एज अ लीज। मैं वहां पे हाउस के अंदर एक कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती हूँ। देन आई हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द लेसर फॉर दैट। यहाँ पे मेरे को लेसर को कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है। इफ इट इज परमिटेड बाय द लेसर देन येस आई हैव राइट टू डू सो। And the last point, return of the possession, clause Q, and it exactly speaks that lessee must return the possession at the termination of the lease. When the lease is terminated, then in that specific circumstances, it is the duty of the lessee to give back the property. अपना ड्यूरेशन टर्मिनेट हो जाने के बाद प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस करना, प्रॉपर्टी का पोजेशन लौटाना बहुत जरूरी है। मेरा 3 साल के बाद पोजेशन खत्म हो रहा है, 3 साल के बाद मैं वहां पे जबरदस्ती रह रही हूँ,
Is it accepted? The answer is no, it is not accepted. I have to return the possession. अगर मेरा वो चीज नहीं है, अगर मैं 3 साल के लिए लिया था तो पोजेशन का एंजॉयमेंट का राइट मेरे हाथ में 3 साल के लिए ही था. 3 साल के बाद वो राइट खत्म, वो और नहीं कंटिन्यू रहेगा. सो आई हैव टू रिटर्न द पोजेशन. जब मेरा खत्म हो जाता है वहीं पे मेरा पोजेशन का एंजॉयमेंट का राइट भी खत्म होता है एंड मेरे को अपना एंजॉयमेंट का राइट वापस करना पड़ता है. So, this is explained under clause Q that lessee must return the possession of the property at the lease termination. Then comes your section 109, which speaks about the right of the lessor's transferee, and that we are going to discuss in the next class. This is all for today, guys. Thank you. Bye bye.